Hello, Assalamu alaikum. Today we will start a new topic in HTML and CSS series. We will start flag blocks today. We have done few things in HTML and CSS, and this will be another new tutorial today. So I am making a new file here, an HTML folder, this one, and I am naming this one as flagsbox.html. Okay, I have made this file. Okay, let me check one thing here. I have I am recording this video by using OBS Studio here. Yeah, it is recording. The recording has been started now. So we move on towards our tutorial here. First, I will write here HTML and then I will select the second one here. And now after doing this, I will save this one. In the title, I will give the topic name here. The today's topic is Flexbox. So I am writing up here Flexbox. Control is saving the file, going into the body, enter. What is a Flexbox? The thing which we need to know, or what is Flexbox and how it works. So if we talk about Flexbox, basically in old days, the layouts were made, or few years back. If you uh, don't know, we will talk about this one. What is Flexbox? Basically, Flexbox is the modern layouts nowadays are designed on Flexbox and CSS grids. Okay, the modern layouts. I am writing up here, so you can see over here the modern layouts. Okay, wait a second. Just correct this one. The modern layouts are made on Flexbox and CSS grids nowadays. If we talk about a few years back, although we do not need to learn the theory because all these things are but we should know all these things. So that's why I'm writing up here. But few years back, the layouts were made. The layouts were made by using floats and tables, and they are hard to control now, and we have to, and almost these things are obsolete now. People don't work by using these things. Okay, so these things which we need to remember. Again, I am commenting all those things because it is a kind of intro which I am writing up here. And flex is a CSS property. Flex is a display property, or you can say, or a CSS comma a CSS property, or a value you can say up here. ओके, तो ये कुछ बातें हमने कर ली हैं इसके अंदर कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। और फ्लैक्स बॉक्स जो मॉडर्न जितने भी लेआउट्स हैं हम फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं, और जितनी भी या सी एस एस ग्रिड्स को, चाहे आप HTML5 के अंदर HTML5 हो यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा CSS फ्रेमवर्क लाइक Bootstrap और एनी अदर CSS फ्रेमवर्क। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इसके अंदर कि हम किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइटल में जाऊंगा और मैं यहाँ पर स्टाइल टैग में यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं स्टाइल टैग ओपन कर लेता हूँ because we are still using the internal style sheets. Now coming back over here in the body, I will take a div here, and this will be a container div. I am assigning the value or a class container. मैं यहाँ पर इसको एक क्लास असाइन कर रहा हूँ और उसको मैं नाम दे रहा हूँ कंटेनर का। और ये करने के बाद स्टाइल टैग में आएंगे। सबसे पहले जो हमें काम हमें करना है, दैट थिंग व्हिच वी नीड टू रिमेंबर, if we are placing, for example, if I am placing two divs or three divs inside this div, inside the container. Okay, just let me write this and I will explain it here. You can see over here, okay, in this div, this is our main div or a container which is ending up here. If you can see it,
and there are three divs inside this, one, two and three. Okay, so all ये जो तीनों divs इसके अंदर मौजूद हैं, ये जो है चाइल्ड divs हैं, और ये जो है इसकी पेरेंट div है, ठीक है। ये हमने ये हमारी एक बात होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी जो है पेरेंट div है, दिस इज अ पेरेंट div, आई एम राइटिंग अप हियर, और यहाँ लिख भी देता हूँ साथ साथ ताकि कंट्रोल दैट अ पेरेंट div। मैं अगर इसको यहाँ पे कमेंट करूँगा तो आई थिंक इट विल कमेंट ऑन द लाइन, यार। सो control Z, and I am writing this one, control X, I am writing this one over here, control V, control forward slash, this is a parent div, and inside parent div these are the child divs 1, 2 and 3. Okay, so if you want to make a flex box or a flex container of a or a flex box, you will have to make the parent div a flex. You will have to give the property display flex to the parent. Okay, so just these are the I am writing up here. These are the parent divs. Okay, sorry. Oh, sorry. These are the child divs. Child divs inside the parent div. Okay, this is the parent which is starting from here and ending up here, and all these things, all these three divs are the child divs. Okay, so things to remember here. Now, what to do? I am coming back over here and I am writing a class. As we already know how to start a class in CSS, so we always write a name by using a dot. So I am placing up a dot here in container. My class name is container. So I am writing up here a container, and I am using the property display colon flex. Okay, and now I'm coming back here in this devs. I'm simply writing a heading h3 box 1 h3 box. Okay, I am giving up the value here box 2. This is box 2, and the last one is I am giving up a heading h3 again, and I am writing up here box 3. So these are the three boxes which I have made inside this parent div. Now what will happen? Okay, I am opening this one in with a live server. It will take some time to get load in the browser, so because the system is getting a bit slower on the side. Okay, now coming back over here, till we work a few more things here. Now जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक parent div बनाई, उसके अंदर तीन child divs मौजूद हैं, box 1, box 2 और box 3। parent div को मैंने क्या प्रॉपर्टी दे दी है, display flags। यार ये अभी तक ओपन नहीं हुई है, क्या हो गया? ओपन विद लाइव सर्वर अगेन। ओके, इट इज लोडिंग अप। हम अपना अभी तो हर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी सिंपली मैं इसको गूगल क्रोम में ही रन करूँगा, कंट्रोल सी, और मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आके हम इसको कंट्रोल वी, एंटर। ठीक है, अब हम अपना काम करते हैं मज़ीद। अब हम जो काम करना है हमें, ये हमारा बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, और यहाँ पर आते हैं। मैं एक और क्लास बनाता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ डॉट बॉक्स, और मैं उसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ग्रे, ग्रे बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि हमें दिख सके। और मैं वहाँ पे मार्जिन भी दे देता हूँ ताकि वहाँ पर गैप्स हों लेफ्ट और राइट से। टॉप बॉटम से मैं नहीं दे रहा, लेफ्ट और राइट से। फर्स्ट वन इज फॉर द टॉप एंड बॉटम, एंड द सेकेंड वन इज फॉर left and right. Okay, so margin left. Now let's see how it looks. Control S, save the file, go back to the browser. Okay, nothing happens. Why? Let's see. अभी कुछ हुआ नहीं है। Okay, हमने यहाँ पे क्लास असाइन नहीं की है, div क्लास, और क्लास का नाम है बॉक्स, तो हम नाम देते हैं बॉक्स। कंट्रोल एस, सेम थिंग विद दिस div box, and same thing with this one।
बॉक्स बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे 3 बॉक्स हैं। अभी तक अगर प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई नहीं की हैं, अब मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं ये हम कंटेनर हमारा पेरेंट है, और जितने भी बॉक्स जो 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 हमने बॉक्स बनाए हैं 3, ये तमाम इसके चाइल्ड है, ठीक है। दिस फर्स्ट डिव, दिस इज द सेकंड डिव, एंड दिस इज द थर्ड डिव, दीज आर द चाइल्ड ऑफ दिस कंटेनर, ओके। सो जब भी आपको फ्लैक्स बॉक्स बनाना है और उसको, इनको मैं फ्लैक्स बनाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फ्लैक्स कॉलन 1। अब क्या होगा, ऑल दीज बॉक्सेस विल अटेन द सेम विड्थ। अब हम देख सकते हैं आगे, तो हमें नजर आएगा कि तीनों के तीनों ने जो विड्थ ली है वो सेम ली है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट दे आर कमिंग अप इन अ रो, ओके। फ्लैक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये अगर हम फ्लैक्स मैंने दिया 1, मैं दे देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, और मैं देता हूँ यहाँ पर रो, तो यू विल सी दैट नथिंग विल हैपन, बिकॉज जो फ्लैक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन होती है बाय डिफॉल्ट वो रॉ ही होती है, तो ये रॉ में नजर आएंगे। मगर अगर मैं इसी फ्लैक्स डायरेक्शन को अगर चेंज कर दूँ टू द कॉलम, देन यू विल सी द डिफरेंस हियर, कि यहाँ पे आगे क्या होगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमेंटिंग द लाइन एंड मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, flags direction I am setting this one to as a column, and you will see what will happen up here. You will see uh, okay, flag direction column, flag direction column, why it is not working. uh, 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 uh. Save the file again, I am writing up this one again, let's see why it is not. Flag direction column, control and save it. Okay, I am writing in the wrong, sorry, because I will have to give this property up here, flags direction, in the parent div, okay, column. Now you will see the difference will be done here. Now you will see the difference over here. Now you can see this one, ओके। अब आपको नजर आएगा कि तमाम के तमाम जो बॉक्सेस हैं एक कॉलम में आ चुके हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, बॉक्स 1 पूरी और बॉक्स 2 बॉक्स 3 तमाम के तमाम एक कॉलम में आ रहे हैं, यानी कि दे आर कमिंग अप ओवर ईच अदर बॉक्स, और ये एक कॉलम बन चुका है। और अगर मैं इसी को, अगर मैं इसकी अगर मैं फ्लैग डायरेक्शन अगेन आई, यार ये विजुअल स्टूडियो क्या हो रहा है, एक मिनट, मैं यहाँ पर चाहता कि मैं इसको देता हूँ रो, या कुछ भी नहीं दूँ अगर मैं, तो ये एक रॉ के अंदर हमें नजर आएंगे, ठीक है, लाइक दिस वन, ओके। एक काम करते हैं, फ्लैक्स वन का मतलब क्या है कि तीनों बॉक्सेस की जो विड्थ है वो सेम हो जाए, और मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं इसको फ्लैक्स 1 नहीं दूँ बल्कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर विड्थ, और मैं इसको दे रहा हूँ 200 पिक्सल्स। नाउ यू विल सी व्हाट विल हैपन अप हियर, गोइंग बैक टू द गूगल रूम। तो अब हमें तीनों बॉक्सेस हमें नजर आएंगे, और यहाँ पे हमें स्पेस भी नजर आ रही है, और क्योंकि तीनों बॉक्सेस को हमने सेम विड्थ एलोकेट की है, तो उसकी वजह से बाकी स्पेस जो है रिमेनिंग है। और अगर अब मैं जाकर देखता हूँ इसको फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, तो शायद आपको थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाए कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से हियर। और मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट, और जाके देखते हैं क्या। अब आप देख सकते हैं कि तीनों एक कॉलम के अंदर हो चुके हैं, ठीक है। नहीं, जिस तरह हम अपनी कॉपी में लाइन्स खींचते हैं हैं डिफरेंट कॉलम्स की, यानी वर्ड्स और मीनिंग्स की स्कूल के अंदर, तो सिमिलरली इट लुक्स लाइक समथिंग दिस। तो यहाँ पर एक ये तमाम एक कॉलम में आ गए, एक कॉलम हमारे पास बन चुका है जिसके, और ये बॉक्स 1 पूरी एक रॉ ले रही है, बॉक्स 2 पूरी एक रॉ ले रही है, और बॉक्स 3 भी पूरी एक रॉ ले रही है। अभी तीनों एक रॉ में नहीं आ रहे, बल्कि 3 रॉस के अंदर आ रहे हैं, मगर कॉलम एक है, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस करता हूँ फ्लैग डायरेक्शन, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और इसको मैं, तो अब क्या, अब डिफरेंस सिर्फ, अब डिफरेंस क्या, अब जो डिफरेंस हमारे पास है गूगल क्रोम वेयर इज, हाँ ठीक है। अब जो हमारे पास क्या डिफरेंस है, एक रॉ के अंदर आ चुके हैं फ्लैग डायरेक्शन, जैसे ही हम रॉ सेट करते हैं तो तीनों के तीनों एक रॉ के अंदर आ चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो काम हो रहा है कि ये एक कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये 3 कॉलम है, जितने बॉक्सेस में आ रहे हैं तमाम के तमाम हमें अलग अलग कॉलम्स के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ये एक हमारी ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हम देखते हैं कि जो मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, मज़ीद बॉक्सेस को मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर, और आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बॉक्सेस हेयर,
There are three boxes. Control C. I am copying this one. Control V. Wait a second. Just setting the alignment of the devs here. H3 will go inside again. Okay. And another dev. Yeah. Control V. So ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो अब देखिए क्या होता है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो बॉक्सेस हैं जब मैं इनको मिनिमाइज कर रहा हूँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4, दिस इज द बॉक्स 5। so when I'm minimizing the window size, these boxes are still coming in the same line। तो हम जाके देखते हैं प्रॉपर्टी है flex wrap, flex wrap, let's see how it works और किस तरह काम करती है। तो अब आपको खुद नज़र आ चुका होगा डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे ही मैं विंडो का साइज छोटा कर रहा हूँ तो जो बॉक्सेस हैं वो दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। क्योंकि दिस नाउ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का हो रहा है। ये फ्लैग स्ट्रैप एक प्रॉपर्टी है जिसको अक्सर लोग यूज़ करते हैं, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ये बात भी करी है कि जो मॉडर्न लेआउट्स हैं दे आर डिज़ाइन ऑन CSS ग्रिड्स और फ्लैक्स बॉक्स। क्योंकि अब जितने भी लेआउट्स हैं वो इन्हीं पर डिज़ाइन होते हैं बाय यूजिंग दिस CSS प्रॉपर्टी, ताकि हम रेस्पॉन्सिवनेस को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकें और एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा वेब पेज बना सकें जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर अच्छे तरीके से हमें नज़र आए, यानी उसकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी हो, हमारा जो डिज़ाइन है वो ब्रेक डाउन ना हो, यानी कोई अलाइनमेंट ख़राब ना हो। ठीक है, तो अब कुछ मज़ीद बातों की हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पेरेंट कंटेनर है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर असाइन कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर समथिंग दिस वन, ब्राउन। ओके, कंट्रोल है, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमें अफेक्ट इसका पड़ रहा है। ठीक है, ये हमने ओके। और एक काम हम और करते हैं, मैं इसको एक हाइट भी दे देता हूँ। ये चले हाइट में अभी नहीं दे रहा, वो हम उसकी बात हम बाद में करते हैं, या दे देते हैं क्योंकि जो ओके आई एम गिविंग द हाइट हियर, हाइट HEIGHT हाइट, एंड आई एम गिविंग द हाइट ऑफ 1000 पिक्सल्स। so you will see a big box over there। ओके, तो अब देखें तमाम के तमाम बॉक्सेस का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। और एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। लेट मी सी दिस फ्लैग्स 500 कर लेते हैं क्योंकि बहुत अजीब सा कुछ दिख रहा है। कंट्रोल एस, और एक काम और करते हैं, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, कंट्रोल एस। ओके, तो जो चीज़ मैं ओके ठीक है, इसको हम देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको दोबारा इन तीन चीज़ों को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ओवर हियर। ओके, कि जब आप अपने इन बॉक्सेस को, यानी जो हमारे बॉक्सेस हैं, रिफ्रेश करता हूँ ताकि ओल्ड उसमें, कंट्रोल एस, रिफ्रेश द पेज अगेन। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो तमाम के तमाम बॉक्सेस हैं वो एक रॉ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पर एक हाइट दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हाइट दी लाइक अ कंटेनर, मैं इसको दे रहा हूँ हाइट 500 पिक्सल्स की। जब मैं हाइट दे रहा हूँ अपने बॉक्स को, यानी मेन कंटेनर को, तो ये तमाम के तमाम का साइज़ ही बड़ा हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो बॉक्सेस हैं इस तरह नज़र ना आए, और मैं इनको चाह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली सेंटर के अंदर आ जाएं। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंट्रोल एस। तो अब क्या होगा कि जैसे मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो ये तमाम के तमाम जो बॉक्सेस हैं वो सेंटर में आ चुके हैं। इस हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं नहीं, जो इसकी लेफ्ट साइड से और राइट साइड जो स्पेस है वो बराबर की आ रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये इस हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आए और वर्टिकली भी। सो आपको सिर्फ एक काम और करना है, और यू विल हैव टू गिव जस्ट वन प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम्स सेंटर,
और जैसे ही हम ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि तो तमाम के तमाम बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पेज के सेंटर में, सॉरी, पेज नॉट इन द सेंटर ऑफ द पेज, बल्कि जो आपका बॉक्स है या कंटेनर है उसके सेंटर में प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बात हो गई हमारी। उसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ इन बॉक्सेस को नीचे लेकर आ जाऊँ तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देख सकते तमाम के तमाम जो बॉक्सेस हैं वो एट द एंड ऑफ द कंटेनर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन पर डिपेंड करता है आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, किस तरह का लेआउट आप डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेट करता हूँ फ्लैग्स एट स्टार्ट, तो ये तमाम के तमाम बॉक्सेस जो हैं वो स्टार्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि एट द टॉप ऑफ द कंटेनर दे विल मूव। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रो रिवर्स है, फ्लैग डायरेक्शन की अगर हम बात करें, फ्लैग डायरेक्शन मैं यहाँ पे चाहता हूँ और मैं लिख देता हूँ रो रिवर्स। तो अब देखेंगे क्या होगा कि जो ऑर्डर है इन बॉक्सेस का वो रिवर्स आ रहा होगा हमारे पास। वेट अ सेकेंड, बॉक्स एक मैं इसको सही भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, वरना ही कंफ्यूजन रहेगी है। 1 2 3 4 एंड 5, these are the 5 boxes which I have used in this layout। और ये एग्जाम्पल है फ्लैक्स बॉक्स की, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाने जाएंगे, जब हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे इसी सीरीज़ के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लैक्स बॉक्स को आपने पढ़ा हुआ हो, समझा हुआ हो, ताकि आपको आसानी हो अब उस डिज़ाइन को बनाने के लिए। ठीक है, नाउ यू कैन सी द ऑर्डर 5 4 3 2 एंड 1 उल्टे ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, या यू कैन से इन द डिसेंडिंग ऑर्डर दे आर कमिंग अप और अपियरिंग। आई मूव बैक ओवर हियर, और मैं इसकी जो डायरेक्शन है, फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं दे देता हूँ कॉलम। इसको अनकमेंट करते हैं हम जाके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं कर देता हूँ कॉलम रिवर्स, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है वो रो थी, तो अब हम करते हैं कॉलम रिवर्स। नाउ यू विल सी व्हाट हैपेंस अप हियर। ओके, ओके, कॉलम रिवर्स, ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। कॉलम डैश रिवर्स फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम डैश रिवर्स, ये क्या मसला हो रहा है? बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, ओके, वाई इट इज नॉट अपेयरिंग, आई हैव नो आइडिया। इस थोड़ा समझ में मेरी भी नहीं आ रहा कि ऑर्डर इसका मैंने रिवर्स किया है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। वेट अ सेकेंड, ऐसा क्यों नहीं हो रहा इसको, आई थिंक दिस शुड कम अप हियर। वेट अ सेकेंड, मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ कि मैं इसका फ्लैग डायरेक्शन में रो कर देता हूँ दोबारा, और फिर क्योंकि जब तो हमारे पास काम कर रही है तो वहाँ पे फ्लैग्स डायरेक्शन मैंने दी यहाँ पे रो, और मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लैग डायरेक्शन रो रिवर्स कंट्रोल एस। यार ये क्या, एक मिनट, अलाइन आइटम्स फ्लैग इज स्टार्ट, आई थिंक शायद इस वजह से मसला हो रहा है। बॉक्स वन, बॉक्स टू, थ्री, बॉक्स फोर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, they were working fine, but now it is not appearing. Why? Box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, display flags, flag direction, row reverse. uh, what is wrong here, center wrap, क्योंकि अभी तो मैंने इसको रन किया है तो तमाम प्रॉपर्टी से सही दे रहा था। वेट, मैं इसको अंडू करके देखता हूँ। लेट मी सी दिस, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, कंट्रोल है। लेट मी सी दिस नाउ। ओके, row reverse, how does that, कंट्रोल वाई, यार ये क्या चक्कर हो गया है, रिवर्स, एक मिनट, कंट्रोल एस, दिस वाज द लास्ट थिंग कि जहाँ पे हमारे पास सही ऑर्डर आया था। ओके, बॉक्स 5 4 3 2 1, मैं इसको दोबारा प्रॉपर्टी से हमारे पास है रो रिवर्स है, सेंटर है।
और मैं यहाँ पे इन बॉक्सेस को आई एम अगेन रीनेमिंग दीज बॉक्सेस, बॉक्स 4, बॉक्स 5, कंट्रोल एस। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम बॉक्सेस जो हैं रिवर्स ऑर्डर में आ चुके हैं। आई हैव वी हैव गॉन बैक टू द सेम स्टेप, ओके, 5 4 3 2 1। और यहीं से हमारे पास कुछ मसला आया था। और अलाइन आइटम्स, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। अलाइन आइटम्स में कर लेता हूँ सेंटर। तो इट हॉरिजॉन्टली अब तमाम चीज़ें जो है पेज के सेंटर में आ जाएंगी। ओके, ये हो गया काम। और फ्लैग्स डायरेक्शन अगर मैं कॉलम करता हूँ, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, ओके 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 फाइन। वो मैंने एक मिस्टेक मैंने वहाँ करी है, तो मैंने कॉलम वहाँ पे दो दफ़ा साइन कर दिया था फ्लैग डायरेक्शन। ओके, तो सिंपली इफ यू वांट द थिंग्स in the reverse order, you will have to write only the column reverse or a row reverse. Okay, so ये flag box का एक basic जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं। और flag box की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर हमने बात की है। I hope it will help you to understand the things about the flag box and all the properties of the flags container. You can share you can share it with your friends, with your siblings, and you can like my videos too. And I hope it will help you. Till then, Allah Hafiz. For the next videos, we will meet in the next videos. मिलते हैं फिर अगली कुछ वीडियोस में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को, जो कि स्टूडेंट्स हों वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के। आई होप इट विल हेल्प टू ऑल ऑफ देम। ओके, एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पर। आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हियर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।